This lecture we are going to discuss about what is basic priority inheritance protocol. हम देखेंगे basic priority inheritance protocol क्या होता है, right? See, basic priority inheritance protocol में क्या होता है? The property of priority inheritance protocol क्या है? Simple to implement, needs no prior knowledge of the resource, right? इसमें क्या होता है? ये बहुत simple होता है और इसमें हमें किसी भी तरह का, are you getting my point? We don't need any prior knowledge of the resource requirement. Job exhibit different types of blocking. What type of blocking is being exhibited by the job? It shows different types of blocking. What are those blockings? First is direct blocking due to the resource lock. हमारी पहली जो blocking है वो है direct blocking. किसकी वजह से होती है? Resource lock की वजह से. Second, we are having priority inheritance blocking, and third is the transitive blocking. So what are type of ब्लॉकिंग इज़ बीन एग्जिबिटेड बाय द जॉब कितने तरह की ब्लॉकिंग्स बताती है? 3 तरह की ब्लॉकिंग बताती है. पहली होती है डायरेक्ट ब्लॉकिंग जो रिसोर्स लॉक की वजह से होती है. सेकंड होती है प्रायोरिटी इनहेरिटेंस ब्लॉकिंग विच इज़ ड्यू टू द प्रायोरिटी कॉन्फ्लिक्ट्स. एंड थर्ड इज़ द ट्रांजिस्टिव ब्लॉकिंग, right? So we are going to discuss these types of blocking in detail further. Now, lower blocking time than the prohibiting preemptive during the critical section, lower blocking time than prohibiting preemptive during critical section, but does not guarantee to minimize blocking. अब ये कह रहा है कि भाई हम ब्लॉकिंग को मिनिमाइज़ करने की कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन ये क्या कर देता है? ब्लॉकिंग टाइम को लो कर देता है, कम कर देता है देन प्रोहिबिटिंग प्रीएम्प्टेशन से, राइट? डेडलॉक इज़ नॉट प्रिवेंटेड, नीड टू मैनेज लॉक एक्विजिशन ऑर्डर इन एडिशन. दे आर सेइंग इट डज नॉट प्रिवेंट डेडलॉक कंडीशन. किसी भी डेडलॉक कंडीशन को ये प्रिवेंट नहीं करता है, लेकिन क्या करता है? इट नीड टू मैनेज द लॉक एक्विजिशन ऑर्डर. ये क्या करता है? मैनेज करता है एक्विजिशन ऑर्डर का इन एडिशन. नाउ विल सी बेसिक प्रायोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल. हम देखेंगे कि व्हाट इज बेसिक प्रायोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल, राइट? सी समटाइम व्हाट हैपन्स द डिजायरेबल टू द फर्दर रिड्यूस ब्लॉकिंग टाइम ड्यू टू द resource contention. अब there comes a situation when the resource gets contented, right? जब resource contention हो जाता है तो उस केस में क्या होता है? जो blocking time होता है वो reduce हो जाता है. Clear? Now second is that the basic priority ceiling protocols provides a mean to do this. अब ये क्या करता है? reduce करता है blocking time को. कैसे करता है? कौन करता है पहले? Who is doing this? Priority ceiling protocol is doing this, and how it is doing this, that we are going to see. See, the assigned priority to all the jobs are fixed. We know whatever priority you are assigning to a job, हम किसी भी job को जो भी priority देते हैं वो fixed रहती है, right? And the resource required by all the jobs are known prior. Plus, what is the second condition is that whatever resources be required by the different types of job is priorly known. We are already we have a prior knowledge of what required resources is being required by the job. हमारे जॉब को किस किस के रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी ये हमें पहले से पता होता है. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द प्रोटोकॉल. हम प्रोटोकॉल को कैसे डिफाइन करेंगे? उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास 2 एडिशनल टर्म्स हैं, right? See, the priority ceiling of any resource RK is highest priority to all the job that require RK and is denoted by pi RK. They are saying that the priority ceiling of any resource, हमने कोई भी resource RK ले लिया, उसका जो priority ceiling है, whatever the priority ceiling that resource RK is having, is the highest priority of all the job, right? जितनी भी जॉब है उन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी उसकी होगी. किसकी होगी? हाईएस्ट प्रायोरिटी सीलिंग की, राइट? एंड दैट रिक्वायर आरके, जिसको आरके की ज़रूरत है, किसी भी रिसोर्स आरके की, एंड इज़ डिनोटेड बाय पाई आरके. जो प्रायोरिटी सीलिंग है उसकी रिसोर्स रिक्वायरमेंट की जो प्रायोरिटी है वो सबसे हाईएस्ट होगी. इन शॉर्ट यू कैन से दैट. नाउ एट एनी टाइम टी द सीलिंग प्रायोरिटी current priority ceiling of a system is equivalent to the highest, what it is? It is equivalent to the highest priority ceiling of resource that are used at that time. हम जिस रिसोर्स को उस टाइम पे यूज़ कर रहे हैं उसकी जो हमारी प्रायोरिटी होगी वो प्रायोरिटी होगी हाईएस्ट. कितनी होगी? वो हाईएस्ट होगी. सो एट एनी टाइम हम ये कह सकते हैं कि करंट प्रायोरिटी सीलिंग जो है किसी भी सिस्टम की वो इक्वल होगी हाईएस्ट प्रायोरिटी सीलिंग की ऑफ रिसोर्स एट दैट आर यूज एट दैट टाइम. उस पर्टिकुलर टाइम पे हम जो भी रिसोर्स करेंगे उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी. नाउ इफ़ ऑल द रिसोर्सेज आर फ्री, हमने एज्यूम कर लिया कि सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो सब फ्री हैं और इज़ इक्वल टू डेल्टा. हमने मान लिया कि भैया वो डेल्टा के इक्विवेलेंट है और वो सब फ्री है,
then a non-existent priority level is lower than the lowest priority level of all the job. तो हमारी जो भी नॉन एग्जिस्टेंट प्रायोरिटी लेवल है वो सबसे कम होगा, जितनी भी हमारी प्रायोरिटी है उसमें जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी का है उससे भी कम प्रायोरिटी होगी, लोअर प्रायोरिटी होगी किसकी, नॉन एग्जिस्टेंट प्रायोरिटी की, जब हमारे सारे रिसोर्सेज फ्री हैं. दिस इज़ क्लियर टू यू. नाउ व्हाट इज़ द बेसिक प्रायोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल, ये हम देखेंगे कि बेसिक प्रायोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल होता क्या है. सी वी हैव सर्टेन शेड्यूलिंग रूल्स, हमारे पास क्या है, कुछ शेड्यूलिंग रूल्स हैं. व्हाट दो शेड्यूलिंग रूल्स आर, फर्स्ट प्रायोरिटी ड्रिवन शेड्यूलिंग जॉब कैन बी प्रीएम्प्टेड. हमारे जो प्रायोरिटी ड्रिवन शेड्यूलिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जॉब को प्रीएम्प्ट कर सकते हैं. सेकेंड इज द करंट प्रायोरिटी ऑफ अ जॉब इज इक्वल टू इट्स असाइंड प्रायोरिटी. वॉट एवर द प्रायोरिटीज इज असाइंड टू दैट प्रायोरिटी ऑफ अ जॉब इज इक्वलेंट टू करंट प्रायोरिटी ऑफ अ जॉब इज गोइंग टू बी द असाइन प्रायोरिटी. भाई कोई भी जॉब जे है उसको हम जो प्रायोरिटी देंगे वो उसकी करंट असाइन प्रायोरिटी ही रहेगी, एक्सेप्ट व्हेन द प्रायोरिटी इनहेरिटेंस रूल इज़ इन्वोक. जब तक कि हम प्रायोरिटी इनहेरिटेंस रूल को वोक नहीं करें तब तक उसकी जो प्रायोरिटी है जो हमने असाइन की है वही रहेगी. Now resource allocation rules. Now we do have certain rules to allocate the resource. See हम जानते हैं जॉब J1 J2 ask for resource. कभी भी जॉब हमारा J1 J2 होती है तो दे हमारे रिसोर्स रिक्वेस्ट भेजती है, रिसोर्स के पास जाता है, एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, रिसोर्स टाइम मिल जाता है. एंड इफ इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड देन दैट वेरी पर्टिकुलर जॉब गेट ब्लॉक्ड. अब हम देखेंगे कि जो रिसोर्स हम एलोकेट हम जो रिसोर्स एलोकेट कर रहे हैं आई एम सॉरी, उसके भी कुछ रूल्स हैं. व्हाट दैट रूल्स इज दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. सी व्हेन अ जॉब जे रिक्वेस्ट रिसोर्स आर्स, कोई भी हमारा जॉब जे है जो रिसोर्स आर के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है हेल्ड बाय अदर जॉब, कोई दूसरी जॉब है जो हेल्ड कर रहा है, द रिक्वेस्ट फेल एंड रिक्वेस्टिंग जॉब ब्लॉक्स. अब क्या हो रहा है भाई, कोई भी हमारी रिक्वेस्ट, कोई भी जॉब जे है, रिसोर्स है, उसको हमने जॉब जे ने बोला कि हम मुझे ये रिसोर्स चाहिए आई एम सॉरी वंस अगेन, उसे वो जॉब चाहिए, तो रिसोर्स चाहिए किसी भी जॉब जे को, लेकिन वो जो रिसोर्स उसको रिक्वेस्ट भेज रहा है वो ऑलरेडी हमारा जॉब J1 ने ले रखी है. तो उस केस में क्या होगा, हमारी रिक्वेस्ट फेल हो जाएगी और जॉब ब्लॉक हो जाएगा. When a job J request a resource R that is available, यदि जॉब J है रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स R का, वो किसी और जॉब ने नहीं ले रखा है, दैट मीन्स इट इज़ अवेलेबल. उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि JS प्रायोरिटी पाई टी इज़ हायर देन द करंट प्रायोरिटी सीलिंग. जो हमारी जो JS की प्रायोरिटी होगी वो ज़्यादा रहेगी किससे, करंट प्रायोरिटी सीलिंग से. एंड R इज़ एलोकेटेड टू J, हम J को R एलोकेट कर देंगे. नहीं तो क्या होगा, और एल्स J इज़ अ जॉब होल्डिंग द रिसोर्सेज, कोई भी जॉब J है रिसोर्स को होल्ड कर रहा है, हुज प्रायोरिटी सीलिंग इज इक्वलेंट टू पाई टी, R इज एलोकेटेड टू J. अब यदि उसकी प्रायोरिटी सीलिंग पाई टी के इक्वलेंट है तो हम R को J को दे देंगे, एल्स द रिक्वेस्ट इज डिनाई, J बिकम ब्लॉक्ड. नहीं तो क्या होगा, उसका रिक्वेस्ट डिनाई हो जाएगा और J को हम ब्लॉक कर लेंगे. सो अनलाइक प्रायोरिटी इनहेरिटेंस कैन डिनाई एक्सेस टू अवेलेबल रिसोर्स. वो प्रायोरिटी इनहेरिटेंस में क्या होता है, वो डिनाई नहीं कर सकता है एक्सेस को अवेलेबल रिसोर्सेज को, लेकिन इस केस में क्या होता है कि अवेलेबल रिसोर्स को भी वो एक्सेस को डिनाई कर सकता है इवन दो द रिसोर्स इज अवेलेबल. सो दिस इज क्लियर. नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द बेसिक प्रायोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल इज. सी प्रायोरिटी इनहेरिटेंस रूल, इसमें हम देखेंगे प्रायोरिटी इनहेरिटेंस रूल क्या होता है. व्हाट इज प्रायोरिटी इनहेरिटेंस रूल. सी व्हेन द रिक्वेस्टिंग जॉब J बिकम ब्लॉक, भैया हमने देखा था कि कोई भी J है उसमें क्या हुआ, एक सिचुएशन ऐसी हुई कि R रिसोर्स चाहिए पर वो R रिसोर्स किसी और जॉब ने ले रखा है, तो रिक्वेस्ट फेल हो जाती है और J जॉब ब्लॉक हो जाता है. और जब J जॉब ब्लॉक हो जाता है उस केस में क्या होता है, द जॉब J1 विच ब्लॉक्स, एक्चुअली जो जॉब J1 होता है जो J को ब्लॉक करता है, इनहेरिट्स द करंट प्रायोरिटी पाई टी. अब क्या होता है, वो जो जॉब J1 जिसके वजह से J ब्लॉक होता है वो उसकी प्रायोरिटी को ले लेता है, इनहेरिट कर लेता है. किसकी प्रायोरिटी को, जिसको हम ब्लॉक कर रहे हैं जॉब को. तो द प्रायोरिटी ऑफ द ब्लॉक जॉब J विल बी इनहेरिटेड बाय द ब्लॉक J1 हु इज़ currently having the access to resource, and the priority of J will become the priority of J1, that is going to be pi T or J. So Ji execute at its inherent priority
until the time when it releases every resource whose priority ceiling is equivalent to or higher than pi t। अब क्या करेगा J1 हमारा जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, जॉब J1 क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा इनहेरिटेड प्रायोरिटी को। एंड हाउ लॉन्ग इट इज़ गोइंग टू एग्जीक्यूट इनहेरिटेड प्रायोरिटी? यू नो व्हाट इज़ द इनहेरिटेड प्रायोरिटी ऑफ J1 Ji? भाई द इनहेरिटेड प्रायोरिटी क्या थी उसकी? वही प्रायोरिटी थी ना जो जे की थी, जिसे हमने ब्लॉक किया था, उसकी प्रायोरिटी हमने इनहेरिट कर ली थी, दैट वाज इक्वलेंट टू द पार्टी। अब वो जो पार्टी उसने ले लिया है वो उसे तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि इट रिलीज एवरी रिसोर्सेज, जब तक कि वो सारे रिसोर्स को रिलीज़ नहीं कर देता तब तक वो उसी की प्रायोरिटी इनहेरिट की थी उसको एग्जीक्यूट करेगा। एंड हुज प्रायोरिटी सीलिंग इज इक्वलेंट टू और हायर देन, जिसकी प्रायोरिटी सीलिंग क्या थी हमारी, या तो इधर इट वॉज इक्वल टू priority or it was higher than priority, then the priority of Ji returns to its priority pi1t at the time t dash when it is granted the resources। और जब क्या होगा तब वो अपनी प्रायोरिटी रिवर्ट एक वापस ले लेगा। what was the priority? pi1 t dash at time t dash when it was granted the resources। जब भी वो ग्रांट करेगा रिसोर्स को अपनी प्रायोरिटी वापस ले लेगा। So I hope this whatever we have discussed today is clear to you, and still if you have any problem please feel free to ask me. Thank you so very much.